Hello everyone, welcome to YouTube channel of Genius Public Inter College. So we are going to start with the new chapter, that is chapter number 7, algebraic expressions. Fine, हम लोग chapter number 7 start करने जा रहे हैं. chapter क्या है आपका? algebraic expression है chapter का नाम. Now first of all, could you tell me what is algebraic expression? algebraic expression होता क्या है? आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, 6th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है algebraic expressions क्या होते हैं. Anyone please? What is algebraic expressions? algebraic expressions क्या होते हैं? Anyone? See, algebraic expressions are nothing but this is the combination of constants. Constants are nothing but numbers. Afterwards, I'll explain you what are constants. Variables and the operations. Operations तो हमने पढ़ लिया है प्रीवियस चैप्टर में क्या होते हैं. Algebraic expressions are the combination of constants, variables and operations. इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है आपका algebraic expression. अभी आपके constants क्या हैं और variables क्या होते हैं. What are constants and what are variables? ये क्या है? Constants are nothing but the numeral value. The English meaning of constant is which is like fixed, जो change नहीं होता है. So constant is nothing but your numeral value, just like numbers. If suppose that I write a number as 123, in this number the digit 3 means 3 itself. अब इसको हम कहीं भी यूज़ करें इसकी प्लेस वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट फेस वैल्यू क्या रहेगी इसकी? ऑलवेज 3 ही रहेगी. The face value of 2 is always 2 itself and the face value of 1 is always 1 itself. इनकी न्यूमरल वैल्यूज़ कभी चेंज नहीं होंगे. और 123 का मतलब है 123 ही. अगर मैंने एक क्वेश्चन में 123 लिखा तो ये नहीं है कि दूसरे क्वेश्चन में 123 का मतलब कुछ और हो जाएगा. एक क्वेश्चन में 123 का मतलब है 123 तो दूसरे क्वेश्चन में 123 का मतलब 123 ही होगा. इट्स मीनिंग इज़ नॉट गोइंग टू चेंज. So constants are nothing but your numeral values, your numbers. Variables क्या होते हैं? आपके alphabets. Just like in the question, sometimes we assume the number as x, sometimes we assume the number as y, p, q. All these are your variables. जो alphabets हम assume करते हैं ये सब क्या हैं? आपके variables हैं. Just like हम questions करते हैं तो हम क्या करते हैं? Let us suppose that this number be x, or else if I write as x plus 10 equals to 0, तो ये 0 कब आएगा? आप कहोगे x को मैम -10 लिख दें तो ये 0 हो जाएगा. अनदर क्वेश्चन आई राइट एज x minus 5 equals to 0, you will say that ma'am here the value of x is plus 5 because 5 minus 5 is 0. See, in the first question the value of x was -10 and in the second question the value of x is 5. So here the value of x is changing. So variable means which varies, which changes. फाइन, जो चेंज होता रहता है, जो वैरी करता रहता है उसी को बोलते हैं हम लोग वेरिएबल्स. कॉन्स्टेंट्स आर योर फिक्स्ड वैल्यूज, दोज आर नंबर्स, एंड वेरिएबल्स आर द वैल्यूज विच कीप चेंजिंग, जो चेंज होते रहते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स. जस्ट लाइक हियर इन द फर्स्ट एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ x वॉज -10 एंड इन द सेकेंड क्वेश्चन तुरंत वैल्यू चेंज हो गई, 5 हो गई. तो यहाँ पे x ही है, यहाँ पर भी x है, बट यहाँ पर दोनों की वैल्यूज डिफरेंट है. But in this case the 123 means 123 itself. Its meaning is not going to change in any question. जहाँ पे भी 123 लिखा है उसका बच्चे अगर स्किप हो गए तो वीडियो रिपीट कर लेना, फिर से हो जाएगा. तो 123 का मतलब 123 ही है, ये चेंज नहीं होगा. सो कॉन्स्टेंट्स मतलब न्यूमरल वैल्यूज विच आर फिक्स्ड, विच आर नॉट गोइंग टू चेंज. वेरिएबल मीन्स विच कीप चेंजिंग, विच कीप वेरिंग, जो चेंज होता रहता है. और हर क्वेश्चन में क्या है, हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यूज चेंज. ऑपरेशंस
we learnt in the previous chapter. We have basic 4 operations: plus, minus, multiplication and division. The combination of these 3 things makes an algebraic expression. For example, if I write 2 plus x, this is the combination of constant, operation and variable. This is an algebraic expression. Fine. If I write 2x square plus 3xy, again it is the combination of constant, variable and operation. फाइन, ये क्या है आपका कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेशन का क्या है, कॉम्बिनेशन है. Here this is again 3 into x into y, so we are using the multiplication operation as well. So the combination of constants, variables and the operations is your algebraic expression. इतना क्लियर है कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेशंस क्या हैं एंड व्हाट आर algebraic expressions. इतना सभी को क्लियर है? ओके फाइन, नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट इज you might be having some network issue. Next is what are terms. Terms क्या होते हैं? When in an algebraic expression, जब किसी algebraic expressions में different parts are separated by plus or minus sign. For example, if I consider the same equation 2x square plus 3xy, this is an algebraic expression. If in any algebraic expression these are separated by, इनके पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है बाई ईदर यूजिंग प्लस साइन और एल्स माइनस साइन. तो प्लस और माइनस साइन क्या करता है, इस algebraic expressions को डिफरेंट पार्ट्स में सेपरेट कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ योर पार्ट 1, दिस इज़ योर सेकेंड पार्ट ऑफ योर algebraic expression. एंड दीज पार्ट्स आर टर्म्ड एज टर्म्स. इन्हीं पार्ट्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं. दिस इज योर टर्म 1, दिस इज योर टर्म 2. जस्ट डू रिमेंबर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन साइन. मैं सिर्फ प्लस और माइनस साइन की बात कर रही हूँ. व्हेन इन एन algebraic expression these are separated by plus और minus sign, they are termed as terms. उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं. सो हियर द फर्स्ट टर्म इज 2x square. If I ask you write all the terms in this present in this algebraic expression, so first term is 2x square and second term is plus 3xy. If suppose that I have another algebraic expression as 2x square y minus 7. So in this, if I ask you to write the terms, so first term is 2x square y and second term is minus 7. As there is minus sign right in front of 7, so the second term is minus 7. second term आपका क्या है यहाँ पर, minus 7 है. so terms clear हुए. terms किसे बोलते हैं? next is factors. ओके फाइन, अगर मैं एक सिंपल नंबर का फैक्टर पूछूं, व्हाट आर दी फैक्टर्स ऑफ 6. 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1 2 3, बस, और कुछ भी है? 6. इट मीन्स विच डिवाइड्स इट कम्प्लीटली, जो उसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे, दैट इज़ द फैक्टर ऑफ दिस नंबर. राइट, यही आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. ठीक, तो ये हमने पढ़ा था न्यूमरल वैल्यूज़ में. अभी मैं algebraic एक्सप्रेशंस में बात करूँ तो फैक्टर्स क्या होते हैं. विल कंसिडर द सेम एग्जाम्पल अगेन. let us suppose that this is 2x square y minus 7. this is an algebraic expression given to us. ये algebraic expression हमें दिया हुआ है. now here wait, I'll write it firstly. okay, I'll write the example again. We are given with an algebraic expression
2x² minus 7. Just now we said that here we have two terms. यहाँ पर हमारे पास कितनी terms हैं? दो terms हैं. First term is 2x² and second term is minus 7. Fine. Now you can see that here in case of 2x² it is the product of 2 x is multiplied twice, that's why this is written as x² and y. So this term is the product of 2x and y. इन चारों का प्रोडक्ट क्या है? 2x² y है. सो ऑल दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 2x² y. इसलिए ये सारे क्या हैं आपके 2x² y के फैक्टर्स हैं. ये क्लियर हुआ? दिस इज़ योर एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. दीज टू आर टर्म्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. ये आपके इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स हैं. एंड दिस इज़ योर फैक्टर. ये क्या है? आपके फैक्टर्स हैं. ये क्लियर हुआ सभी को? ओके फाइन. इफ सपोज दैट I'll give you one example, just answer me. If it is written as minus 2xy plus 7y². So just let me please could you tell me what are the terms in these two, in this algebraic expression? What are the terms? Terms क्या है इस algebraic expression में? First of all, how many terms are there? Two. Okay, we have two terms. What are those terms? First term क्या है आपका? minus 2xy is the first term. What is the second term? Yes, exactly, 7y² is the second term. Now if I ask you the factors, what are the factors of first term? First term के factors क्या क्या हैं? minus 2x and y. These three are the factors of minus 2xy. And what are the factors of 7y²? 7. Yes, exactly, 7y and y. These three are the factors of 7y². So this is clear to everyone, right? Okay. Next is coefficient. कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? टर्म्स के साथ में जो न्यूमरल वैल्यू या फिर वेरिएबल लगा होता है. फॉर एग्जांपल इफ़ आई राइट minus 2xy, आपसे मैं minus 2xy एग्जांपल देती हूँ और पूछती हूँ व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ xy. इफ़ सपोज आई आस्क यू द कोफिशिएंट ऑफ xy, तो xy के साथ में यहाँ पर एक्स्ट्रा और क्या बचा हुआ है? -2. So -2 is the coefficient of xy. And if I change my question, if I ask you what is the coefficient of -2, -2 का coefficient क्या है? Yes, so -2 का coefficient हो जाएगा xy. ठीक है. तो किसी टर्म के साथ में जो आपका किसी भी क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो न्यूमरल या फिर वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं वही आपके क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स होते हैं. इतना क्लियर है? नेक्स्ट इज लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म. जस्ट लाइक यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास व्हाट आर लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस. आपने 6th क्लास में पढ़ा. लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं बताएगा कोई? भूल गए? लाइक मीन्स सेम, विच लुक सिमिलर, विच आर सेम. अनलाइक मीन्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. लाइक का मतलब होता है जो एक दूसरे के सिमिलर है, एक दूसरे के जैसे सेम है.
और अनलाइक का मतलब होता है विच आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं वो होते हैं आपके अनलाइक. सो टर्म्स मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दीज अनलाइक इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जो ये टर्म्स हैं हम इनकी बात कर रहे हैं. अब इसमें लाइक और अनलाइक क्या है, आई विल टेक एन एग्जाम्पल और मैं उसकी हेल्प से बताती हूँ. इफ़ सपोज दैट वी आर गिवन विद एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस 2xy minus 5x minus 5yx plus 6y plus 7x. ये ऐसा कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यहाँ पर दिया हुआ है. सो जहाँ पर जिस भी टर्म में आपके सेम वेरिएबल्स यूज़ किए गए हों, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम वेरिएबल्स, जहाँ पर भी आपके क्या है टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल फैक्टर, इसको याद रखना आप, टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल फैक्टर. जो वेरिएबल्स वाले फैक्टर आए टर्म के अगर वो सेम हैं तो दोज आर टर्म्ड एज लाइक टर्म्स, तो उनको हम लोग लाइक टर्म्स बोलते हैं. अब कैसे देखो, यहाँ पर देखो 2xy एंड 5yx, आपके दो हैं टर्म्स 2xy एंड माइनस 5yx. हियर यू डोंट हैव टू लुक एट द कांस्टेंट टर्म. यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट नंबर यहाँ पे न्यूमरल वैल्यू लिखी है इसको नहीं देखना है, आपको सिर्फ देखना है यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं. यहाँ पर भी वेरिएबल आपका x और y है और यहाँ पर भी इस टर्म में भी वेरिएबल आपका क्या है x और y ही है. वेरिएबल सेम है कि नहीं है दोनों में. So if the variables are same then these are termed as like terms. अगर आपकी वेरिएबल्स सेम है तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं लाइक टर्म्स बोलते हैं. जस्ट लाइक हियर इन 5x एंड 7x, दोनों में वेरिएबल सेम है x और x ही है. सो 5 माइनस 5x एंड 7x दीज आर लाइक टर्म्स. माइनस 5x और 7x आपके कैसे हैं लाइक टर्म्स हैं. और अनलाइक टर्म्स इसी का अपोजिट, जहाँ पे आपके वेरिएबल फैक्टर्स क्या हो सेम ना हो. जिस एक्सप्रेशन में जिस टर्म में किसी एक्सप्रेशन के टर्म्स में अगर वेरिएबल फैक्टर्स सेम नहीं है देन दोज आर योर अनलाइक टर्म्स. इफ़ आई टॉक अबाउट दिस 5x एंड 6y, तो क्या ये लाइक टर्म्स हैं नहीं है. 5x एंड 6y आर अनलाइक टर्म्स बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल x यूज़ हुआ है और यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज़ हुआ है y. यहाँ तक क्लियर है सभी को, इतना क्लियर है ना सभी को. I forgot to switch on the video. So types of algebraic expressions में हमने देखा on the basis of terms we are dividing the types of algebraic expressions. First one was a monomial. Monomial मतलब जिसमें सिर्फ एक टर्म हो. The algebraic expressions having only one term, one and only one term, that is your monomial. So here 2xy, this has only one term. One terms हमने कैसे डिवाइड किए थे, if the constant and variables or else the it is divided into any algebraic expression when it is divided into parts either using plus or minus sign, तो क्या होता था वो हमारा टर्म्स में डिवाइड हो जाता था. बट हियर यहाँ पे हमने क्या किया प्लस या माइनस साइन से कुछ भी सेपरेशन नहीं किया है. सो हियर वी हैव ओनली वन टर्म, दैट्स वाई दिस इज मोनोमियल. Here again we have only one term because this is not separated by neither minus sign nor plus sign. Next one is a binomial. Binomial का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, here the expressions having two terms, जिन expressions में दो terms हों उन्हें बोलते हैं हम लोग binomial. यहाँ पर example के लिए x minus 5, here we have two terms, first term is x, second term is minus 5. So in this case here we have two terms, that's why this is referred as binomial. Next example is 2x square y minus x square. Here first term is 2x square minus y and the second term is x square. That's why here we have two terms. This is also referred as binomial. Next one is trinomial. Trinomials, as just now you said, the expressions having three terms. जिन expressions में तीन terms हों उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइनोमियल बोलते हैं. लेट्स कम टू एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल देखते हैं.
if suppose that 2x plus 3y square minus 6. Here you can see that we have three terms. First term is 2x, second term is 3y square and the third term is 6. यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म्स हैं? तीन टर्म्स हैं. पहली टर्म हो गई 2x, दूसरी टर्म हो गई 3y square and the third term is minus 6. So the expressions having three terms is referred as trinomial. उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज क्वाड्रिनोमियल. Can you guess what is quadrinomial? Yes, exactly. The expression quad means 4. Quad का मतलब हो गया 4. So expressions having 4 terms. If in any algebraic expression we have 4 terms, then that is referred as quadrinomial. उसे हम लोग बोलते हैं quadrinomial. एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड. Here we have 4 terms in this expression. First term is 2x square, second term is plus y square, third term is minus z square and fourth term is plus xyz. So expressions having 4 terms is called as quadrinomial. And the last one is your polynomial. We have a separate chapter named as polynomial in class 8. सिर्फ polynomials के बारे में class 8 में आप पूरा पढ़ने वाले हो. तो polynomials क्या होता है? Algebraic expressions having one or more terms. It means monomial is also a polynomial, binomial is also a polynomial, trinomial is also a polynomial, quadrinomial is also a polynomial. And if an expression has more than 4 terms, then those expressions are also called as polynomials. किसी भी एक्सप्रेशन में एक या फिर एक से ज़्यादा टर्म्स हों, ठीक है, एक या फिर एक से ज़्यादा टर्म्स हों, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. ठीक है, क्लियर है? सो मोनोमियल भी आपका एक मतलब इन सबको अगर जनरली मैं बोलूँ क्या बोलते हैं, तो इन सबको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. किसी भी एक्सप्रेशन में एक या फिर एक से ज़्यादा टर्म हो, सो ऑल दोज आर कॉल्ड एज पॉलिनोमियल्स. इज इट क्लियर अप टू हियर? लुक एट द एग्जाम्पल नंबर 1. राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ x in -2xy. You have to write the coefficient of x and we are given with the term -2xy. तो बताओ इसका कोफिशिएंट क्या आएगा? x का कोफिशिएंट बताना है. x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? द ईजिएस्ट मेथड टू सॉल्व इट इज़ आप x को सेपरेट कर दो और x को सेपरेट कर दोगे तो इसके साथ में और क्या बचा है? -2y. सो हियर कोफिशिएंट ऑफ x in -2xy is -2y. क्लियर है? ये हो जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस. लुक एट एग्जाम्पल नंबर 2. write the numeral coefficient. See here it is mentioned that write the numeral coefficient of xy. न्यूमरल कोफिशिएंट आपको लिखना है किसका? एक्स वाई का. अब बताओ न्यूमरल कोफिशिएंट एक्स वाई का क्या होगा? न्यूमरल मतलब क्या हो गया? नंबर की बात कर रहा है, नंबर पूछ रहा है. एक्स वाई का न्यूमरल कोफिशिएंट क्या होगा? -7/2 कहाँ से हो जाएगा? क्या आप आंसर देख रहे हो क्या एग्जाम्पल में? यहाँ पर देखो एक्स वाई के साथ में कुछ भी नंबर नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करता है? 1 एग्जिस्ट करता है. सो 1 एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब इसका न्यूमरल कोफिशिएंट क्या हो गया? 1 हो गया. इफ़ यू लुक एट द सेकेंड बिट ऑफ द सेम एग्जाम्पल, सो यू आर आस्क्ड टू
राइट द न्यूमरल कोफिशिएंट ऑफ -3xy। सेकेंड बिट में क्या बोला है, एक्स वाई का क्या, एक्स -3xy टर्म में एक्स वाई का आपको न्यूमरल कोफिशिएंट बताना है। तो एक्स वाई का न्यूमरल कोफिशिएंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली -3 आ जाएगा। तो पहले वाले एग्जाम्पल में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा, मतलब यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करता है, 1। सो 1 इज द न्यूमरल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म एक्स वाई। क्लियर है ये? लुक एट द एग्जाम्पल नंबर 3। राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको कांस्टेंट टर्म बताना है। अब पहले तो ये बताओ मेरे को, फर्स्ट बिट मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर टर्म्स कितने हैं आपके पास, कितने टर्म्स हैं यहाँ पर, 2 टर्म्स हैं। पहला आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया। सो हियर वी हैव 2 टर्म्स, -2x² एंड -9। नाउ इन द क्वेश्चन यू आर आस्क्ड टू राइट द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या हो गया, जिसमें वेरिएबल्स ना हो। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या हो गया, जिसमें वेरिएबल्स ना हो। तो आपका कांस्टेंट टर्म कौन सा आ गया, यस, -9 इज योर कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मीन्स विच डज नॉट हैज़ एनी वेरिएबल, जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। यहाँ पे वेरिएबल x है, तो इसलिए कांस्टेंट टर्म आपका नहीं होगा।